ठीक है, इसको 24 पे बहुत कूल हो जाता है। अभी अनम्यूटेड है। वकास लैपटॉप का कैमरा थोड़ा सा नीचे कर। ठीक है, ये अनम्यूट थैंक यू। अभी करेंगे, करें। अब इसको ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज का अब शुरू करते हैं सेशन। हु इज द प्रेजेंटर फॉर टुडे? I'm Dr. Sana. जी, I have to present. हाँ जी Okay, ma'am, शुरू करें? जी जी बिल्कुल। My patient Kiran, 23 years of age, wife of Rahil, who is 30 years of age. She is educated till inter-class. She is a housewife, resident of Korangi, which is 1 hour distance from the hospital. She is married for last 9 months, the first consensuous marriage of the couple. She is a primary gravida with the last menstrual period on 7th December 2020. That makes her expected date of delivery on 14th September 2021. Currently, she is 28 plus 6 weeks of gestational amenorrhea here in OPD for the follow-up of her decreased hemoglobin levels. According to patient, she entered in pregnancy without any preconceptional counseling, no any folic acid supplementation. Before embarking pregnancy, her hemoglobin was 10 grams per deciliter, which she got checked when she got her coital tear after her first sexual intercourse, for which she got moderately bleed for 3 days, and that was recovered on oral medication with no need of repair. She confirmed her urinary pregnancy test by when her 15 days overdue ate home. She got an ultrasound in first 3 months of gestational amenorrhea that found a single intrauterine pregnancy with a normal uterus and adnexa. She booked herself to the near clinic, where on the basis of her looking pallor and looking jaundiced, her lab investigation in the form of hemoglobin, liver test function, and ultrasound abdomen was been done, along with other baseline, in which hemoglobin was found to be 8 grams with a liver test function 2.2 according to the patient, and the large spleen on ultrasound. So she was been referred to the Jinnah Hospital for workup. At Jinnah Hospital on OPD basis, her workup was been started. And how many weeks of gestation ये जो आप अभी बता At रही the हैं? booking. At booking 14 visit, weeks. madam, initial 3 months. ठीक Yes. है। Then at Jinnah Hospital, when she was referred, then on OPD basis, her workup started. According to patient, every weekly her CBC was been repeated, and the hemoglobin falls from 7, 6, and up to 5. When it becomes 5, she becomes symptomatic with fatigueness, lethargy, with no any shortness of breath or palpitation. She was been admitted and given one blood Paxil volume under monitoring and the 3 IV transfusion, and eventually patient is unaware whether the typing of anemia was done or not. But since there was no response with that, she was been referred to the hematological hospital NIBD, where her HP electrophoresis was been done, but patient was told that it is inconclusive because it is a post transfusion, and patient post transfusion. After that, the patient used to come on regular basis to the OPD, where her hemoglobin was been followed every monthly, and was hemoglobin decreased. Whenever hemoglobin decreased, she was given blood pack cell volume, and ultimately patient has been transfused 3 PCVs 1 month apart, along with the injection methocobol, which was been given initially for regular basis for 6 days, followed by one injection weekly for the 6 weeks. Her last transfusion was done 1.5 month back uneventfully. Till then, according to patient, she is symptom free, and her recent hemoglobin is 8 grams. According to patient, she has never bleed from any of orifices during her this pregnancy. Even before pregnancy, there's no any history of easy bruisability, no any history of a family history of a bleeding disorder, thalassemia, and there's no any cousin marriages in her family, except her is only cousin marriage. Her diet is very much sufficient of meat, poultry, fresh vegetables. She used to take very compliantly her iron and folic acid supplementation, which is with water, and there's no history of pica intake. Her cycle was regular with normal flow, and there's no recent history of fever, flu, and no history of having history is not suggestive of malaria, dengue, or tuberculosis and worm infestation. Her blood pressure has been checked throughout, and it is normal with no any complaint of headache, epigastric pain, nausea, vomiting. She does not have any history is not suggestive of excessive eating, drinking, micturition, burning micturition, vaginal discharge. Her sugar levels are also found to be normal. There's no any family history of diabetes, no heat and cold intolerance.
to the patient. The patient perceived her first fetal movement during 5th month of gestational amenorrhea and found to be normal up till now. Abdominal girth is also up till now it's normal. According to patient, her anomaly scan was been done on 5th month. It is found to be normal. Her serial scans of the baby growth and the Doppler has been also done and found to be normal. She is here further unaware of her further workup, diagnosis, and management. According to patient, her age of menarche was 13. The cycle was regular with 7 by 28 days. Normal flow, regular with no any coital difficulties, no vaginal discharge, no pap smear has been taken, and the couple never practiced contraception. Other than this, she has been never admitted to the hospital. No any surgery in the form of splenectomy, nothing done. Her family history is not suggestive of any hypertension, diabetes, tuberculosis, asthma, or any bleeding disorder. She's only allergic to the dust, but she do not take any particular medications for that. Her sleep, appetite, bowel habit has been normal. She has been never transfused before, and socioeconomically she belonged to the middle class family. On examination, the young lady with a BMI of 20 kilogram per meter square, well oriented with time, place, and person, with a pulse of 84 beats per minute. The blood pressure is 110 by 80 millimeters of mercury. Respiratory rate is 14. Temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Moderate pallor has been appreciated at the palmar crease, nail bed, and conjunctiva. And there's no any jaundice, leukonychia, chylonychia, cyanosis, thyroid lymph node not palpable, no secret pedal edema, no bruises, no petechiae has been appreciated. The breast looks normal with everted nipple, no palpable mass on all four quadrant. S1, S2 audible, JVP not raised, and the lung was clear on the both sides with equal airway entry. On abdominal examination, the abdomen is distended with a gravid uterus. Umbilicus is centrally placed, everted, no visible veins, pulsations, try marks been available or is not appreciated, and it was soft, non-tender, with a symphyso-fundal height of 27 centimeter, lie longitudinal, presenting part cephalic, amount of liquor seems to be adequate. Estimated fetal weight is 1 to 1.5 kilogram, and the fetal heart was 140 beats per minute. Summary of my case. ठीक है, समरी बताइए। और Yes, ma'am. आपका जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ओनली, वो बता दें। Yes, ma'am. Ma'am, summary of my case: 23 years of age, primary gravida, married since 9 months, 28 plus 6 weeks of gestational amenorrhea with decreased hemoglobin for her follow-up visits, with a history of 3 pack cell transfusion, uneventful last transfusion 1.5 month back, now asymptomatic, with a BMI of 20 kilogram, moderate pallor with the recent hemoglobin of 8 grams, and on per abdominal examination, it's 28 centimeter, lie longitudinal, presenting part cap, amount of liquor adequate, estimated fetal weight 1 to 1.5, and fetal heart was 140 beats per minute. Yes, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस आपका क्या है सो फार बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ओनली? Madam, on history and examination, since the patient gave history that her hemoglobin has been rapidly falling with a raised of her bilirubin levels, which was at that time not evident, but according to patient, it was raised and she was been serially following it up with ultrasound evidence showing splenomegaly. It means there is some element of hemolysis there inside of her body. So hemolysis could be of anything. It is because either it could be the hereditary, it could be the acquired. If you talk about inheritance, then the most common thing comes it is going more towards the thalassemia on the top, or it could be other red blood cell surface abnormality. Or if we talk about hereditary, acquired, then in this patient, it is unlikely to be any malaria, dengue, tuberculosis. Her blood pressure also remains normal. So it seems more towards the thalassemia that was not initially diagnosed, and recently in pregnancy, she has been falling her hemoglobin. ओके, अब आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ऑन अल्ट्रासाउंड द स्प्लीन वाज फाउंड टू बी एनलार्ज्ड. डिड यू चेक इट ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन so as to confirm the findings on ultrasound? Yes, ma'am. I tried to check, but since his infusofundal height was 27 centimeters, so it was not detected. It's difficult to detect during that period. Okay. So इसमें definitely with 28 week size uterus, it is difficult to check. But is there any other method to check it on clinical examination? By palpation, there are different ways. With this much fundal height, it is
difficult to check. But Yes. is there any other way to check Yes. it? क्या? Yeah. Yes, there are other ways like during palpation, we can ask the patient to be to be moved to turn to our side. We will push it from back and try to put our hand below the costal margin. Then we can also check. Still Another not way is possible. by means of percussion and causing Still it by is very percussion. difficult to feel for the enlarged spleen in the presence of 28-week size uterus. चाहे आप उसमें कोई भी पोस्टर पेशेंट को कहें या किसी भी तरीके से करें, so the appropriate method would be checking the size by percussion. डालोन percussion नोट जो है वो आपको पता चल जाएगी. So roughly you can assess the size of enlarged spleen, क्योंकि usually spleen की जो एक लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, and if it is below that level तो आप उसमें कह सकते हैं कि it is enlarged. तो that was one thing कि spleen को आपने चेक कैसे करना है. बट द डायग्नोसिस, जो प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने बताया, हेमोलिसिस इज द बेसिक पैथोलॉजी, लेकिन हेमोलिसिस की जो मुख्तलिफ कॉजेज हैं जो आपने बहुत सारी इन्यूमरेट की, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट हु एंटर्ड द प्रेगनेंसी विद अ नॉर्मल, थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि माइल्ड एनीमिया के साथ 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, अगर उसने उस वक्त कोई उसको ट्रांसफ्यूजन नहीं मिली या कोई आयरन इन्फ्यूजन नहीं मिली, और 10 ग्राम हीमोग्लोबिन इज नॉट दैट बैड, जो कि उसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज वाली डेफिनेशन में एंटर हो जाए. लेकिन इसमें आपको क्या अप्रोप्रिएटली क्या कॉज लगती है हिस्ट्री के ऊपर, अगर आप सारा डिटेल में जाएं? ज़ाहिर है आपने पेशेंट को डिटेल में इंटरव्यू किया है एंड यू हैव टेकन अ डिटेल्ड हिस्ट्री, तो उसमें कोई आपने बताया कि डेंगू या उसमें मलेरिया के साइन सिम्टम्स नहीं हैं, so what else seems more probable in this case? Iron deficiency anemia could be thing, but madam, according to patient, the diet is quite sufficient of my patient, and plus she does not. She, according to patient, throughout she used to take good food, everything. There's no any bleeding previously before pregnancy. Her cycle was been regular. Recently, no any episode has been done of this patient, and she's primigravida also. So again, the factor of this multigravida have been also gone, which further causes iron deficiency anemia. So that is why the probability of iron deficiency anemia is quite low in this patient. And plus, iron deficiency anemia can never causes hemolysis. It can never raise your LFTs level. It can never cause an spleen to be enlarged. So there's no any hemolytical component of this in iron deficiency anemia. There's no any hemolytical component, because the patient was clearly been saying that in her, when she was admitted in medical ward, the doctor told her that your red blood cells are getting lysed inside of this spleen. That is why your spleen is getting enlarged. So it is more going towards the hemolytic thing. And on the top, as we have a prevalence of thalassemia more common in our women who do not have a recent attack of malaria, tuberculosis, dengue or PIH. So after excluding all that, it is more going towards the thalassemia. तो हिस्ट्री आपकी मतलब जाती है इस फेवर में, थैलेसीमिया की फेवर में. Yes. What type of thalassemia? Madam, in this patient, it's unlikely to be major thalassemia, because she has been never transfused and she is now well grown. She is fertile. It is not a minor thalassemia, because in minor thalassemia usually it's not up to mark hemolysis, no need of repeated blood transfusion, no this rapid fall. So in between, it is likely the thalassemia intermedia, which usually present in a very different spectrum. Either it opportunistically, like in this pregnancy, like in this woman, we diagnosed during pregnancy, the hemoglobin has been decreased, or so it's like it's most probably towards the intermediate part of the thalassemia. Okay, do you think there can be any other hemoglobinopathy in this case? Yeah, it's unlikely to Or be you would any sickle cell limit your anemia. diagnosis to thalassemia, beta thalassemia only. कोई और hemoglobinopathy के chances हैं इसमें? Alpha thalassemia, they can also present in the same view as this beta thalassemia, but the difference will be of electrophoresis. It is unlikely to be sickle cell, because again, the sickle cell, it means the patient would have certain episodes of hypoxia or hospital admission, repeated transfusion, because it has lots of chronic and acute crisis episodes in them. So, and again, if you talk about another like
those which are very towards them like a structural cause of surface of red blood cell, then they usually detect in a very earlier phase. By this age, it's not only the pregnancy that could elaborate them, but it could have detected in earlier phase. So it's more still going towards seeing the prevalence of thalassemia in our society also. It's going towards the thalassemia, because normally we got to know very first time of thalassemia in the patient who were never been symptomatic even without family history, because they have been never screened before. So they got as an opportunity, we get them and pick them up. So among the probabilities, you would list the beta cell thalassemia at the top. Yes. Okay. So how you would confirm diagnosis by further investigation? जब आप इसकी investigation list में क्या क्या चीजें शामिल करेंगे जिसमें ये सारी probabilities को आप screen out कर सकते हैं? And number first, I need her very first CBC report in which wanted to know the hemoglobin, total leukocyte count, platelet, and all the parameters of this, the mean cell volume, mean cell hemoglobin, and mean cell hemoglobin concentration. And would like to see the peripheral smear to see the structure of the red blood cell, WBCs, platelets, to see any hemolysis in that scene, or abnormal cell structures, teardrop cells will be seen in that. I would like to do the serum ferritin in that patient also, to see, to confirm whether it is confirm or exclude this iron deficiency anemia. And if this MCV is found to be MCHC is found to be normal, and this patient has also giving history that is more going towards the thalassemia, then a definitive diagnosis by HP electrophoresis could be done. इसके जो ये रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा कोई और आप टेस्ट करवाना चाहेंगे? In this patient, yes, madam. Now in this. Yes, and in this, I would like to know her the liver test function of this patient, the first and the recent, to see whether it's been declined or not, and then ultrasound of her liver is also important, because the LFTs has been raised. So I want to see echo texture. I want to see the status for gallbladder, to see the spleen, how much enlargement has been seen in that. I wanted to see the hepatitis B surface antigen, anti-HCV, because she has been transfused. I want to see the COVID PCR in that patient, and uske alawa, I want to know the oral glucose tolerance as part of our being a thalassemic also, and also as a part of protocol of antenatal care as well. And or and if a thalassemia comes to be positive, then I husband. बेटा LFTs आप क्यों करवाओगे? उससे आपकी क्या information चाहिए आपको? Ma'am, it will help me to make my diagnosis of that how much cells are, because initially the patient gave me history that her cells, her this rapid decline of hemoglobin with a large spleen. So first thing comes in mind was the hemolysis. So in order to confirm hemolysis, we have to complete the parameters, like a decrease hemoglobin and then increase bilirubin, and then we see the peripheral smear, and after doing all that basic test, we could decide where to go. इसके लिए आप अगर सिंपल बिलीरुबिन करवा लें तो क्या वो काफी नहीं है? Instead of having a wide range of LFTs में तो बहुत कुछ आ जाता है. Yes, तो खाली बिलीरुबिन भी तो आप करवा सकते हो. And there are other markers for hemolysis as well. उसमें आप वो भी करवा सकते हैं. But madam, LDH. LDH. They are, madam, saying that it's like it's. Madam, ये कहा जाता है कि LDH is very non-specific. If you got decreased hemoglobin and raised. ठीक है, LDH के जाहिर है एक non-specific है, और ये और भी बहुत सारी चीजों में raise होता है. Even in sepsis it can raise. Even in some tumors it can be raised. और इसके अलावा ये इसमें हेमोलिसिस में भी रेज हो जाएगा, लिवर फंक्शन डिसऑर्डर्स में भी ये रीरेंज हो जाएगा. तो उसके नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स बहुत हैं. सिमिलरली इज द रेटिक काउंट. रेटिक काउंट बेसिकली सिग्निफाइज द न्यू होम्योपाइसिस, तो जो कि हेमोलिसिस में होती है. व्हेनेवर देयर इज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, इट इज एक्टिवेटेड, इट इज इंक्रीज्ड. या आप जो आयरन थेरेपी देते हैं उसमें ये इंक्रीज होता है क्योंकि हेमोपाइसिस बढ़ रही होती है. तो इस वजह इस तरह से ये आप, लेकिन दीज आर द अवेलेबल पैरामीटर्स टू डिटेक्ट हेमोलिसिस. ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक हैं. चलें अब इसमें आगे चलते हैं हम. इसमें इसकी रिपोर्ट्स क्या थी इस पेशेंट की? यस मैम, इनकी जो रिपोर्ट्स थी ना, इनकी
इनकी जो फर्स्ट बुकिंग पे थी, इट वाज 7.7 hemoglobin with MCV of 57, MCHC is 18, and this MCHC was 32, Hmm. and then platelets and TLC was been normal, and the peripheral smear was showing microcytic, hypochromic, and the teardrop cell, with the LFTs of total bilirubin was 2. Total bilirubin was 2. Yes, 2 international. ठीक है। और और इसके अलावा बाकी टेस्ट? yes ma'am, बाकी टेस्ट में हर दिस HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनका LDH भी बढ़ा हुआ था. शी वाज हैविंग 440 LDH. रेटिक काउंट वाज 7. रेटिक काउंट वाज, इनका रेंज में मैडम दिया गया था 5 to 28%. दे हैव गिवन रेटिक काउंट इन हर, एंड and then her serum ferritin after iron transfusion according to patient, क्योंकि ये iron transfusion के बाद when she went to the NIBD hospital तब किया गया था, and it was 834 nanograms. ये कब की रिपोर्ट है सीरम फेरिटिन की? Serum ferritin 30th March. 30th मार्च। उसके बाद रिपीट नहीं हुआ ये? उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं रिपीट हुआ. Okay. It was not. तो दिस वाज आफ्टर आयरन इन्फ्यूजन इन मार्च। ठीक है। तो अब इन सारी और बाकी हीमोग्लोबिन HP yes ma'am. इसमें adult hemoglobin was 81.6, and the fetal hemoglobin is 12, and the HbA2 is 5.9. 12 और A2 कितनी थी? 5.9. 5.9। अब आपका डायग्नोसिस क्या है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस इन्वेस्टिगेशंस? और इनकी रिपोर्ट्स भी अब आपके सामने हैं। बीटा थैलेसीमिया, ट्रेड। बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया, ये इसको पहले कभी सिम्टम्स नहीं हुए, अब बीटा थैलेसीमिया ऑल ऑफ अ सडन is became symptomatic during pregnancy. Why? Because the pregnancy itself is state of hemodilution. That is why her hemoglobin drops, and she drops, and that is why the hemoglobin. That is why she became more enumerated that time, and her all labs was been done, and she was been opportunistically at that time was been diagnosed to have decreased the hemoglobin with her raised LFTs, and all that workup then starts. But that can explain only the hemoglobin, low hemoglobin levels. How you would explain enlarged spleen and all other repeated transfusions and still the hemoglobin to be at 8? Because the hemoglobin, because we know that in thalassemia the hemoglobin, these red cells are quite unstable. They are more liable to breakage inside of the spleen. That is why they are been destructing the spleen, and because because of this being anemic, when her HP drops during pregnancy, her bone marrow response increases, so bone marrow started to produce more immature cells into the circulation, and they are more liable to get breaked into inside of the spleen. That is why the more rapid fall in the hemoglobin, more hemolysis, and enlarged spleen has been become more enumerated during pregnancy. That was not initially diagnosed before. So you would classify it as minor, major, or what? Intermediate. Intermediate. Intermediate आप इसको क्यों कह रहे हो? Because she's not on the regular regimes of transfusion that is usually seen in cases of our thalassemia major. The rough criteria is greater than 7 transfusion per year, and in minor we do not give any transfusion. It's a mild anemia that occur during pregnancy that has easily been corrected, rarely need blood transfusion. And however, this intermediate is that has it depends upon the patient condition, how much their body is able to carry that hemoglobin, how much the red blood cell could survive in their body. Then depending upon that condition, the transfusion has been given. So there is no any basic regime of transfusion. It is according to the patient's condition. That is why. So does hemoglobin electrophoresis report support your diagnosis? Hemoglobin electrophoresis, yes, madam. You just tell her that there is some defect in your adult hemoglobin. The fetal hemoglobin has been raised. The other form has been raised. Then again, it yes, it does support my diagnosis also.
And plus then again depend upon the clinical parameters whether require regular transfusions or not. We put the patient in this category of intermedia. And this With hemoglobin both electrophoresis report was after receiving 3 transfusions. yes, ठीक है? but still it was not diluted. ओके, अब इसमें usually in thalassemia minor or intermedia the hemoglobin A2 should increase. Why hemoglobin F has been increased? And what is its significance in the present scenario of this patient? Madam, it means it is an abnormal hemoglobin that is increased. वो तो है, वो तो ज़ाहिर है adult hemoglobin तो नहीं है, लेकिन hemoglobin F जो है वो A2 की बजाय ये ज़्यादा बढ़ गई. Why? What basically goes wrong in thalassemia? उसमें क्या There is defect in globulin हाँ जी, structural फर्क होता है थैलेसीमिया में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The beta globulins are not formed properly. So it So is a globulin matter chain of is not quantity. It is a matter of quantity of It's a quality. quality It's a or quantity. quantity. Sorry, quantity. So it is Yes, basically quantity. the matter of quantity. Then why hemoglobin F and A2, which are basically structurally different from the hemoglobin A, so that beta chains are being replaced by the other chains. ठीक है? तो इसमें जब क्वांटिटी का इशू है तो इसमें आप इसको हीमोग्लोबिन F का बढ़ना या A2 का बढ़ना आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? Yes, ma'am. When any in thalassemia, if any of the globin has been decreased, and in order to compensate that, the other increases. That is the reason it has been increased. Because if the beta chain globulin, if the beta form of the globulin has been decreased, in order to compensate, the alpha will increase. Maybe that is the reason the fetal hemoglobin and E2 has been increased. But why only fetal hemoglobin? Fetal hemoglobin का usually adult life में तो नहीं होती. नहीं होती. तो फिर इसमें hemoglobin F is markedly increased up to 12. Normal कितनी होती है? Less than 1. Less than 1. तो इसमें तो this is markedly increased, while hemoglobin A2 is moderately increased. So why? I think maybe it is post-transfusion defect. Maybe it's because of पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इसमें डिफेक्ट क्या होगा? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन तो मैम डाइल्यूशन हो जाती है, लेकिन is it going towards the 60 हो जाती है? We are giving her packed cells. उसमें dilution किस चीज की होगी? So it is not a matter of dilution at all. Okay, इसको हम बाद में एड्रेस करते हैं. अब इसमें ये आपने इसका थैलेसीमिया इंटरमीडिया का बना दिया. Now this patient is at 28 weeks of gestation with a large spleens and recurrence of severe anemia again and again despite receiving 3 packed cells. इसका सीरम फेरिटिन 831 था in March. Would you like to repeat it again? Yes, I would like to repeat it again. इसका To दोबारा see whether it's been increasing. Yes, सपोज हम इसकी इसी रीडिंग को ये इसी रीडिंग पे ये सीरम फेरिटिन परसिस्ट कर रहा है. ठीक है, हमें अभी इसकी नए लेवल नहीं पता. तो इस सारी फाइंडिंग के साथ, इन सारी रिपोर्ट्स के साथ विद हीमोग्लोबिन नाउ द करंट हीमोग्लोबिन बीइंग एट 8 और सीरम फेरिटिन का आपको पता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट का पता है, सीरम बिलिरुबिन 2 है, स्प्लीन इज एनलार्ज्ड ऑन अल्ट्रासाउंड as well as fetal biometry सब कुछ है वो that is according to the 28 week gestation without any other fetal compromise. ठीक है, इसको हम ऐसे सपोज कर लेते हैं. तो इसमें आपकी अब लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी? And what are the risks in that? And what are the risks in that? Without treatment and with treatment. I'll counsel my patient regarding the diagnosis that on the basis of history investigation, history examination, available investigation, you have got a thalassemia. This is basically a bleeding blood disorder in which there's a defect in hemoglobin synthesis. That is why your hemoglobin has been falling. That is why your spleen has been enlarging, and that is why you're getting transfused. And this makes your pregnancy high risk. This makes your pregnancy the high risk for both your mother and the baby. On the top, it's a disease that runs in a family. There's a risk of
transmission to your fetus. That is why, in order to quantify, I would like to do your husband's hemoglobin, because if your husband is also positive, then there is 50% chances for being carrier, 25% being normal, आपने and 25% being twin. हस्बैंड का तो एनालिसिस अभी तक नहीं किया. Yes, when So how you can comment on it was not available. It was not available to the patient. We advised that at that moment. That is why I put it in the management. ठीक है, चलें. And after counseling that, even if I'll tell patient that even if the husband this electrophoresis found to be negative, still it is a high risk, because your baby is at a risk of intrauterine growth retardation, being carrier, 25% chances, having chance of preterm delivery, and the morbidity. For you, it's it being a most important cause of anemia with the risk of repeated blood transfusion, it associated reactions, infection, and because of anemia itself, you would be at a risk of infection, both antenatal, intrapartum, postpartum, serious instability, preterm labor, dysfunction labor, with unable to withstand with a small amount of a postpartum hemorrhage, and of course, because of this repeated blood transfusion, hemolysis, the risk of being iron overload and its need and its complication and need of therapy. So, in order to prevent all that above risk factor, we would like you to offer a structured antenatal program with a multidisciplinary team, in which we as obstetrician, along with the medical people, and hematological team, blood bank, neonatologists and radiologists will be taking care of yourself. Since in order to monitor you, your baby, and the disease, since you are now 28 weeks with a hemoglobin of 8, with having thalassemia on the transfusion, thalassemia which has been maintained on the transfusion, our aim would be to keep your hemoglobin at a safe level that should be at least 10 grams throughout your pregnancy and your during the time of your labor. So now you are 8 grams. So in order to increase that, I would like you to offer admission to increase your hemoglobin. And the only way to increase your hemoglobin is nothing but simply the under monitoring the Paxil transfusion. So during your hospital stay, we will get a cross-matched blood arranged for you. We will take your blood pressure, general physical examination, detailed per abdominal examination, look for your fetal heart, do an ultrasound for that. We'll give you under very supervision PCVs is being given. You'll be assessed both clinical and the lab parameters to see the increase in hemoglobin. Once your hemoglobin becomes 10 grams after the transfusion, you can, and since you are fine, you are compliant, and you are living in the same city, you'll be coming to us on the OPD basis. We will advise you to continue your this folic acid supplementation, which you are taking 5 milligrams throughout your pregnancy. So now you are 28 weeks, so you will be coming to us on OPD every 2 weekly, being high risk. Every time would we come, we'll ask about your well-being, your weight, blood pressure, detailed general physical examination, per abdominal examination, fetal hearts would be heard, and your hemoglobin would be checked every 2 weekly to see the rate of a drop of hemoglobin, may require transfusion to correct that. And other is your fetal growth. Every 3 weekly would be done to see the rate of a fetal growth. And during that period, also the medical review would be done to assess you, since your ferritin level seems to be raised. So your end organ evaluation in the form of maybe the iron accumulation to the viscera, like thyroid, like your diabetes status would be checked. If required, then chelation therapy could be done, but that would be done after the medical review. It's quite safe to do right now. If everything goes fine and your hemoglobin, maintaining your hemoglobin to the 10 grams without having fetal-maternal complication, will take your pregnancy close to the near to the term and await for the spontaneous labor. At 36 weeks, we again make sure that at 38 weeks, we again make sure that your hemoglobin is fine. We'll arrange 2 PCVs in a blood bank, which inform the blood bank, also arrange a donor in case if we require. We'll do your again per abdominal examination, detect the do the pelvimetry to assess the suitability to delivery of that baby, and if it is fine, then we await for the spontaneous labor. And during labor, when you come in a labor, then we will do your state CBC. ये जो सारा आपने बताया, ये पेशेंट की काउंसलिंग आप कर रहे हो मैडम, yes, और इसके साथ साथ आपने मैनेजमेंट भी साथ ही बता रही हो, ऐसा ही है ना? यस मैम। तो आपने दोनों चीजें आप कवर कर रहे हो, लेकिन बेसिकली जो आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, उसको आप एक रफ सा ट्रीटमेंट स्केच आप बता रहे होते हैं, ठीक है? व्हेन यू हैव टू नरेट द ट्रीटमेंट, तो फिर आप ट्रीटमेंट के एग्जैक्ट बेसिकली उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं विच कैन हिंडर विद योर ऑनवर्ड ट्रीटमेंट,
Like in this patient, she has a baseline raised serum ferritin levels with a confirmed diagnosis of thalassemia, intermedia हम इसको कह देते हैं, और इसके अलावा enlarged spleen है and there is recurrent low hemoglobin. ठीक है, पेशेंट को आपने ये काउंसलिंग करके ओवरऑल एक लेआउट बताना है मैनेजमेंट प्लान का. इसमें आप अगर उसको इस मतलब इस तरह से आप बताओगे कि मैं उसको कि यू कैन वी विल बी हैविंग दिस ट्रीटमेंट प्लान फॉर यू, तो उसमें काउंसलिंग को अलहदा से कर दें. काउंसलिंग में एक रफ सा ट्रीटमेंट प्लान उसको बता दें. अब उसके बाद एग्जामिनर से मैनेजमेंट डिस्कस करें कि मैं पेशेंट को ओवरऑल ये बता दूंगी कि शी इज एट हाई रिस्क स्टेटस एट द मोमेंट, कि उसका जो बेस लाइन स्प्लेनिक एनलार्जमेंट, फेरिटिन लेवल ज्यादा, बेस लाइन HB जो इसकी कम है डिस्पाइट रिसीविंग 3 पैक्ड सेल्स एंड ऑल अदर्स, और आयरन इन्फ्यूजन वगैरह भी जो शायद इसको फेरिटिन लेवल असेस करने से ही पहले मिली. तो ये सारी चीजें हैं. तो इसमें ऑनवर्ड इसका फ्रीक्वेंट उसके एंटीनेटल विजिट्स हैं, उस पे जो है वो ओवरऑल फीटल सर्वेलेंस, ये सारी चीजें हमने देखनी है. एंड देन वी विल डिसाइड द डिलीवरी प्लान अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन एट दैट टाइम. तो लेकिन आपने एग्जामिनर को ट्रीटमेंट के स्टेप अलहदा से बताने हैं. ठीक है, इसमें आपने उसको ब्लेंडिंग नहीं करनी लाइक यू आर डूइंग, मतलब ये एक अच्छे तरीके से आप बता. Hello? 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 ओके, तो इसमें जो है वो आपने सबको आवाज आ रही है अब? Yes, ma'am, अब आ रही. हाँ जी, वो थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया था. तो इस तरह से फिर आपने उसको बताना है. सो रीस्टार्ट इट. इसको आप मैनेजमेंट अपने एग्जामिनर को बतानी है, वो आप कैसे बताओगे? Yes, मैम मैंने तो ऐसे ही प्लान की थी कि फिर एग्जामिनर को ऐसे बताना है कि I'll address her issues of decreased hemoglobin. When you are asked about the management, so patient is already admitted with you, and most of the things have already been explained to her. And if not, then you will tell her about the things, about the risk factors and about the management plan again. उसमें थोड़ा सा कवर करके फिर आप उसको वन बाय वन सब चीजों को लेके चलें. ठीक है, अब इसमें स्प्लीन एंड लार्ज है, इसके सीरम फेरिटिन रेज्ड हैं, आप उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की बात करें. नहीं, वो थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो तो उसके लिए बुलाया था. अब ठीक है, तो इसमें जो बार बार आप ब्लड दे रहे हो उससे भी क्या सीरम फेरिटिन रेज्ड नहीं होंगे? सीरम फेरिटिन आर नॉट ओनली रेज्ड बाय आयरन इन्फ्यूजन्स, दीज आर ऑल्सो रेज्ड. इसमें 2 फैक्टर्स हैं रेज होने के. एक तो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स, आप पैक्ड सेल भी दे रहे हो अगर खाली, उसमें भी आयरन इन्फ्यूज होता है. इक्वल टू 1 डोज ऑफ विनोफर, तो तकरीबन 200 से लेके 250 मिलीग्राम आयरन जाता है पेशेंट के अंदर विद इवन 1 पैक्ड सेल इन्फ्यूजन. अब वो भी, और हेमोलिसिस, ऑनगोइंग हेमोलिसिस के साथ भी जो रेड ब्लड सेल्स आर बीइंग ब्रोकन, उससे बिलिरुबिन लेवल भी रेज हो रहा है, उससे आयरन लेवल भी रेज हो रहा है. सो हाउ यू विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम? और उसके अलावा जो एनीमिया इसका चल रहा है, आपका टारगेट हीमोग्लोबिन 10 है, बट स्टिल यू आर फेल टू अचीव दैट टारगेट, बावजूद इसके कि इसको 3 पैक्ड सेल्स मिल चुके हुए हैं. शी स्टार्टेड विद हीमोग्लोबिन 8 एट 14 वीक्स, और 14 वीक्स के बाद इसको आयरन इन्फ्यूजन भी मिली, 3 पैक्ड सेल भी मिले, हीमोग्लोबिन उसकी वहीं की वहीं है. आप इसमें अगर हीमोडाइल्यूशन का इफेक्ट कर भी लें तो भी आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते खाली हीमोडाइल्यूशन इफेक्ट से. सो देयर इज ऑनगोइंग हेमोलिसिस, जो कि LDH भी बढ़ गया और बिलिरुबिन भी इसका बढ़ गया. ये सारी चीजें सिग्निफाई करती हैं कि हेमोलिसिस ऑनगोइंग है. हाउ यू विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम? ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो मरीज को तो समझ नहीं आएंगी, आप उसको अपनी जुबान में बताओगे
तो इसलिए जो है वो इसको आपने एग्जामिनर को बताना है कि इसको मैं कैसे एड्रेस करूंगी। ठीक है, पेशेंट को तो आप ओवरऑल एक चीज बता रही हो कि इसमें ये रिस्क हो सकते हैं, आपको इतने अरसे बाद हम देखेंगे, और आपका हमारा मैनेजमेंट प्लान ये है कि हीमोग्लोबिन को हमने इस लेवल तक रखना है, 10 तक तो शायद आप यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट। और इसके अलावा ये भी मसले हैं, आयरन का भी लोड ज्यादा है और उसको कैसे आपने करना है, उसमें बहुत टेक्निकल चीजें मरीज को समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए आपने उसको ब्रीफ सा बता के फिर बाकी एग्जामिनर को डिटेल में बताना है कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे करूंगी, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे करूंगी, बीइंग अ कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिस्कशन। ठीक है, उसमें फिर आपने टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए, क्योंकि अब ये मैनेजमेंट की डिस्कशन है, तो फिर उसमें आप टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए सारी चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसका So, पैटर्न now इसी तरीके से बताऊं। Now my patient has issues. Number first is her continuously dropping hemoglobin with raised ferritin level, increased spleen, and increased level of the LFTs. So, in order to control all that, I would involve the medical people, hematologists during that care, and means obstetrician, unitologist, radiologist would be working in it. Her target would be 10 grams to maintain it, and that could be only achieved by repeated transfusion. And we know that transfusion has its own hazards along with raised increasing level of a ferritin. So it means this patient needs address of the serum ferritin also. So in close collaboration with the medical people, I would like her to get assessed about her ferritin levels, and if required, then chelating therapy, desferrexamine, which is quite safer in pregnancy, could also be started. I would like to get her assessed from cardiologist as well to see the cardiac status, because iron. कितने लेवल सीरम फेरिटिन के होंगे तो आयरन चिलेशन थेरेपी आप स्टार्ट करोगे, बिकॉज दैट इज नॉट अ फेवरेबल ऑप्शन इन प्रेगनेंसी। Ma'am, normally it is up to 150. Normal is a 150 iron chelation. Normal is ferritin should मैं be. ये पूछ रही हूँ कि सीरम फेरिटिन के किस लेवल पे आप ये शुरू करोगे आयरन चिलेशन थेरेपी? सीरम फेरिटिन के कितने, क्या अभी शुरू कर दोगे? 831 इसकी सीरम फेरिटिन तो अभी भी है। Madam, actually it depends upon the clinical status. हाँ जी, Clinical status of the patient. Clinical status of the patient is important here. क्लिनिकल स्टेटस यू मीन्स व्हाट? क्या आपके ख्याल में अभी आपने जो इसको डिटेल में एग्जामिन किया, इज शी अ कैंडिडेट ऑफ आयरन चिलेशन थेरेपी जस्ट नाउ या नहीं? Madam, in this usually the primary indication to give iron chelation in pregnancy is your cardiac overload of getting iron. That is the only primary indication. So I will get her assessed from the cardiologist. That he would कार्डियक ओवरलोड आप कैसे असेस करोगे इस पेशेंट में? आपने कैसे असेस करना है कि इसको आयरन चिलेशन थेरेपी की जरूरत है? बिकॉज हर हीमोग्लोबिन इज 8, आपके मुताबिक, आपके टारगेट के मुताबिक तो अभी भी ये नहीं है। So you would be planning more transfusion in this case, ऐसा ही है? Yes, ma'am. तो इसमें तो और ओवरडोज होता जाएगा सीरम फेरिटिन, और चूंकि हेमोलिसिस भी चल रही है सीरम फेरिटिन और बढ़ेगा। तो आयरन चिलेशन थेरेपी क्या आप इसको अभी करोगे या और वेट करोगे? एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ सीरम फेरिटिन जिस पे आप इसको स्टार्ट कर दोगे? I don't know about that. Anyone else? Okay. इसमें यूजुअली जो सीरम फेरिटिन के लेवल्स जो कि अनसेफ लिमिट में हम कहते हैं वो 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो इस पे क्योंकि अब इस पेशेंट में हमें सीरम फेरिटिन फिर हमें टाइम टू टाइम रिपीट करवानी पड़ेगी, एंड वी डोंट नो व्हाट आर द एक्चुअल लेवल्स नाउ, बिकॉज इसकी हेमोलिसिस इतना अरसा चली आफ्टर मार्च 2021, और इसके अलावा इसको 3 पैक्ड सेल भी मिले। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल बी रेज्ड मोर। पेशेंट में बाद दफा कुछ साइन सिम्टम्स भी होते हैं फॉर आयरन ओवरडोज। अगर वो ना भी हों तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सीरम फेरिटिन लेवल्स। अगर ये 1000 मिलीग्राम से ऊपर क्रॉस कर जाए तो दैट इज द टाइम कि जिसपे आपको आयरन चिलेशन थेरेपी कर लेनी चाहिए, बिकॉज एट 28 वीक्स iron chelation therapy is not a favorable option in pregnancy, even in the third trimester,
लेकिन आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड आप इसमें आयरन चिलेशन थेरेपी को सेफली दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो टेराटोजेनिसिटी होता है। तो अगर वो वाला फेज गुजर गया है तो फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द बेसलाइन लेवल ऑफ सीरम फेरिटीन आप इसको दे सकते हो, क्योंकि इसके नतीजे में जो एंडोक्राइनोपैथीज या कार्डियक प्रॉब्लम्स या जो हेपेटिक प्रॉब्लम्स होंगे दैट आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू गिविंग द थेरेपी इटसेल्फ। तो इसको तो आपने इस तरह से करना होगा सीरम फेरिटीन के लेवल के मुताबिक, अगर साइन सिम्टम्स नहीं भी हैं तो। अब दूसरी चीज आ जाती है स्प्लेनिक एनलार्जमेंट। वुड यू एड्रेस दैट प्रॉब्लम और यू विल लीव इट एज सच ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड यू विल जस्ट फोकस ऑन management of low hemoglobin and all the other complications? Ma'am, we would along with medical review, we would do an ultrasound to see the level of splenic enlargement, how much it has been increasing, because it is again telling us that how much hemolysis has been going on also. So we'll keep on reviewing that. By every 4 weekly, we can do an ultrasound to see the enlargement of the spleen. ये क्या ये प्रोसेस ऑफ हेमोलिसिस जो है जो थैलेसीमिया की वजह से है, क्या हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं किसी तरीके से? Yes, ma'am. Regular transfusions can cause us slow it down because in that time, if we make a proper management and give her a proper transfusions, which is quite difficult in cases of this intermedia, then the erythropoiesis is quite suppressed and those cells has been not formed and ultimately less hemolysis is occurring. So ट्रांसफ्यूजन तुम कर ही रहे हैं, लेकिन मसला ये होता है कि इफ अ प्रोसेस ऑफ हेमोलिसिस एक चल रहा होता है और इसमें तो खैर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ ये हो गया, अगर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस ना हुआ होता तो इसके डिफरेंशियल में हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया एज सच भी आ सकता था ड्यू टू अदर कॉजेस। ये तो हीमोग्लोबिनोपैथी तो इसमें कंफर्म हो गई बाय हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन ये है कि अगर ये और हेमोलिसिस का प्रोसेस इवन इन थैलेसीमिया भी उसमें अल्टीमेट पैथोलॉजी होती ही हेमोलिसिस की है, बिकॉज द आरबीसीज आर मेल फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ ग्लोबिन चेन्स, पार्शियल और कंप्लीट वाली तो ये पिक्चर नहीं है। तो उसमें भी प्रोसेस ऑफ हेमोलिसिस कैन बी स्लोड डाउन बाय गिविंग सम थेरेपीज, क्योंकि अगर ये बहुत रैपिड हेमोलिसिस हो रही है, दिस वाज नॉट द केस प्रायर टू प्रेगनेंसी इन दिस केस, क्योंकि उसमें अगर प्रोसेस ऑफ हेमोलिसिस पहले से होता तो ये ऑलरेडी प्रेगनेंसी में एंटर ही लो हीमोग्लोबिन के साथ होती, while she entered with a good hemoglobin according to her thalassemia status. Thalassemia status में 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना भी एक अच्छी बात, वो हीमोग्लोबिन समझी जाती है। तो इसका मतलब है उसका हेमोलिसिस का प्रोसेस वाज क्वाइट स्लो डाउन बिफोर दैट और वो कॉम्पनसेट हो रहा था, बट समहाउ ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी इटसेल्फ उसमें उसका एक्टिवेट हो गया, या कोई और अगर इसमें कोई ट्रिगर था तो वो हमें नहीं पता चल सका ऑन हिस्ट्री एंड ऑन एग्जामिनेशन एंड इवन ऑन इन्वेस्टिगेशंस। तो ऐसा जब होता है कि उसमें एक्टिवेटेड हेमोलिसिस होती है, क्योंकि इसमें बार बार हीमोग्लोबिन लो हीमोग्लोबिन रिकर कर रही है बावजूद ही ब्लड देने के भी, तो इसमें अब जाहिर हम ना आयरन दे सकते हैं, हम इसमें जो दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बाद दफा रेयरली देयर इज सम यूज ऑफ गिविंग स्टेरॉइड्स इवन एंटीऑक्सीडेंट्स इवन दैट आर एज्यूम्ड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ हेमोलिसिस। अगर स्टेरॉइड्स का ज्यादा रोल ऑटो इम्यून हेमोलिसिस में ज्यादा उसका होता है, बट इवन इन दीज केसेस जो क्रॉनिक पैथोलॉजीज होती हैं वहां पे भी ये प्रोसेस जो है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, खासतौर पे जो स्प्लेनिक एनलार्जमेंट भी है। अगर ये स्प्लेनिक एनलार्जमेंट इज सेकेंडरीली ड्यू टू हेमोलिसिस इटसेल्फ, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि क्या स्प्लेनिक एनलार्जमेंट उसकी कॉज तो नहीं है। अगर ये कोई सवाल करे कि स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है पहले से हो और समहाउ इसने एक्टिवेट कर दिया हेमोलिसिस को, तो आपके पास इसका जवाब क्या होगा? So ma'am, if the splenic enlargement already occur and it is causing, then फिर तो if it is, then depends how much rapid it has been falling, then we need to then option is to remove of the cause spleen removal. प्रेगनेंसी में तो नहीं हम रिमूव करेंगे immunoglobulin steroid। अगर से जो क्रॉनिक या ग्रॉस जो स्प्लेनिक एनलार्जमेंट होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्प्लीन एनलार्ज जैसे बाकी ऑर्गन्स की एनलार्जमेंट थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं,
तो वो तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। लेकिन ये या फिर जो कि बहुत क्रॉनिक जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं उसमें भी हो सकती है, हमें इसका नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री पेशेंट की नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास बेसलाइन इसका स्कैन नहीं है, हमें नहीं पता कि पहले से थोड़ी बहुत थी या नहीं थी, या जैसे कोई क्रॉनिक मलेरिया वाली पिक्चर भी इसमें नहीं बनती जो कि यूजुअल कॉजेज हो सकती हैं स्प्लेनिक एनलार्जमेंट की, क्योंकि मलेरिया में भी हेमोलिसिस के थ्रू ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए अगर हमें और कोई इसकी कॉज नहीं मिल रही तो हम यही कहेंगे कि दिस इज ड्यू टू हेमोलिसिस ड्यू टू थैलेसीमिया इन दिस पेशेंट। अगर हमें हिस्ट्री या एग्जामिनेशन पे कुछ और वजह नहीं मिलती तो हम इसकी कोई और वजह ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइबल, क्योंकि आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन पे भी और कोई रीजन नहीं मिली, और इन्वेस्टिगेशन पे तो आपने कंफर्म कर लिया डायग्नोसिस थैलेसीमिया का, इस वजह से जो भी चीजें इंटरलिंक्ड हैं वो आप थैलेसीमिया के साथ ही लिंक करोगे, उसमें फिर और कोई पैथोलॉजी को फिट नहीं करोगे, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्प्लेनिक एनलार्जमेंट इस केस में आप सेकेंडरी ही कहोगे ड्यू टू हेमोलिसिस एज अ रिजल्ट ऑफ थैलेसीमिया which somehow has been activated during pregnancy, जो कि बार दफा हो जाता है प्रेगनेंसी में एक्टिवेट हो जाता है, चाहे पेशेंट पहले से एसिम्प्टोमेटिक भी हो। तो ट्राई टू कीप इट टू अ सिंपल सिनेरियो, इसको बहुत ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेट, चाहे आपसे वो सवाल उस तरह से बार दफा थोड़ा सा घुमा फिरा के भी सवाल पूछा जाता है जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज, लेकिन आपने उसको एक सिंपल सिनेरियो के तौर पे ही प्रेजेंट करना है जब आप चीजों को इंटरलिंक आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसमें आप आसानी के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये थैलेसीमिया है, इसकी वजह से हेमोलिसिस हुई, इसकी वजह से स्प्लीन एनलार्ज हुई। So I would try to focus on the management of low hemoglobin due to thalassemia itself. तो इस वजह से इसमें जो रिपीटेड ब्लड हमें टाइम टू टाइम देने पड़ेंगे। अब 8 ग्राम हीमोग्लोबिन पे पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक नहीं है, क्रॉनिक एनीमिया में अमूमन पेशेंट सिम्टोमेटिक बहुत ज्यादा नहीं होता, तो बिटवीन 8 to 9 वुड बी एक्सेप्टेबल, बट डेफिनेटली दिस इज एनीमिया, दिस कैन कॉज प्री टर्म लेबर, दिस कैन कॉज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगरचे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का एलिमेंट ज्यादा उस वक्त होता है इफ परसिस्टेंटली हीमोग्लोबिन इज बिलो 7, लेकिन इसमें आप उसकी पॉसिबल कनेक्शंस टू दीज फीटल कॉम्प्लिकेशंस आप बताते हुए आप इसमें ये कहोगे कि 10 ग्राम हीमोग्लोबिन का टारगेट अचीव करना इस पेशेंट में बहुत मुश्किल है, बिकॉज शी इज थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जो कि मेजर और माइनर के दरमियान वाली स्टेज है। तो इसमें किसी भी वक्त थैलेसीमिया इंटरमीडिया में तो हो सकता है बाद दफा ये स्टेज आ जाती है कि रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, तो उस सूरत में आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि इसको आप 10 तक पहुंचाएं। तो बिटवीन 8 and 9 वुड बी एन अप्रोप्रिएट टारगेट इन दिस केस। अलबत्ता जब आपने इसमें कोई सर्जरी प्लान करनी है, डिलीवरी प्लान करनी है और एनी अदर प्रोसीजर, तो उस वक्त आप इसकी हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करोगे बाय गिविंग ट्रांसफ्यूजन, and off and on you will keep an eye on the ferritin level as well, so as if it crosses the danger limit then you would keep it low, और इसमें आयरन चेलेशन थेरेपी वाली चीजें आप इसमें डाल दोगे which you can give। अगर हम उसके रिस्क और बेनिफिट को देखें तो इसमें इसमें बेसिकली फेरिटिन लेवल के रेस होने की मुख्तलिफ वजह हैं, जिनमें अगर ये थैलेसीमिया, ये तो हमारे पास तो एक क्लियर रीजन है ना इसमें कि हेमोलिसिस हो रही है तो इसमें फेरिटिन लेवल बढ़ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो फेरिटिन लेवल बढ़ गया, वरना एक आम पेशेंट में हम इन्फेक्शंस को भी इसमें रूल आउट करते हैं, क्योंकि ग्रॉस जनरलाइज्ड इन्फेक्शन भी फेरिटिन लेवल को रेस कर देते हैं टेम्परेरीली एंड देन इट कम्स डाउन स्लोली। तो इसमें इस तरह से आपने अपनी जो ट्रीटमेंट प्लान है इसको इस तरह से आपने डिवाइड करना है डिफरेंट चीजों पे। स्प्लेनिक एनलार्जमेंट को आप अभी उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको मॉनिटर कर रहे हो, क्योंकि वो तो जो पैथोलॉजी स्प्लेनिक एनलार्जमेंट की है वो तो आप खत्म नहीं कर सकते, वो तो है ही है, आप उसके सिर्फ इफेक्ट्स को, कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस कर रहे हैं, यानी थैलेसीमिया का। तो इस वजह से जो है वो आपने इसका अनीमिया, फेरिटिन लेवल और बाकी आपने इवन बिलीरुबिन लेवल्स भी, बिलीरुबिन लेवल आपको क्लिनिकली तो मेरा ख्याल है इसका कोई जॉन्डिस तो विजिबल नहीं था। नो मैम, क्योंकि क्लिनिकली जो जॉन्डिस विजिबल होता है वो 3 लेवल, जब 3 से क्रॉस कर जाए तो तब ये क्लिनिकली विजिबल होता है, 3 से नीचे विजिबल नहीं होता।
लेकिन इसके बिलीरुबिन लेवल को भी आप मॉनिटर करते रहोगे ताकि हेमोलिसिस का वो सारा पैटर्न आप देखते रहो कि उसमें कहाँ तक उसकी बेसिकली सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन को आपने असेस करना है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, ये होगा जो इसमें आपने करना है। अब इसमें हम आते हैं कि ये तो हो गया जो आपने, यहाँ तक ये क्लियर है कि आपने इसकी एंटीनेटल केयर को कैसे लेके चलना है। And definitely that should be in collaboration with the hematologist and the physician. ये multidisciplinary team वाली management होगी, क्योंकि time to time there can be variable pattern of presentation in the thalassemia intermedia. तो इसलिए इसमें आपको time to time hematologist की opinion की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है वो अब इसकी मैनेजमेंट यहाँ तक तो हो गई क्लियर कि इसमें फीटल मॉनिटरिंग है, मैटरनल मॉनिटरिंग है, मैटरनल जो हमने टेस्ट करवाने हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली करवाने हैं, उन टेस्टों के ऊपर हमने बाकी मैनेजमेंट को कैसे एड्रेस करना है, हमारा टारगेट क्या होगा। तो अब हम आते हैं इसकी टाइम, फिर हम इसके टारगेट 9 तक ही रखें। हाँ, क्योंकि देखो थैलेसीमिया इवन माइनर में भी हमारा जो टारगेट होता है वो 9 से ऊपर अक्सर जाता ही नहीं है, क्योंकि अगर आयरन लेवल ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़ाहिर को एग्जिस्ट कर सकता है कुछ पेशेंट्स में, और उस सूरत में आप आयरन उसको दे सकते हो। लेकिन अगर सीरम फेरिटिन लेवल जैसे इस पेशेंट में है वो तो ऑलरेडी इज टू हाई, तो उस सूरत में फिर आपको इवन ओरल आयरन भी आप नहीं देते, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ओरल आयरन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही होती है। तो इस वजह से फिर आपने ओरल आयरन भी इनको नहीं देना होता, सिर्फ उनमें ओरल आयरन दें जिनमें आयरन डेफिशिएंट है, जिसमें सीरम फेरिटिन लेवल्स आर क्वाइट लो। तो इसलिए हम इसको इस तरह से फिर लेके चलेंगे। अब इसमें हम आते हैं मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। तो इसमें जो थैलेसीमिया माइनर वाला आपका क्वेश्चन था कि इसमें हम 9 तक रखेंगे, 9 और 10 के दरमियान में भी हो थैलेसीमिया माइनर में तो दैट इज एक्सेप्टेबल। इंटरमीडिया में इसमें 8 to 9 वुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि 10 तक आप अभी तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके इस पेशेंट में, बावजूद बार बार आयरन और ट्रांसफ्यूजन देने के भी। और ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है कि इसमें होता यही है कि इसमें आप ट्रांसफ्यूजन दे रहे होते हो, साथ साथ उसके आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, और उसमें अल्टीमेटली वो फिर उसी लेवल पे आ जाता है, और अननेसेसरीली आप उसको ट्रांसफ्यूजन और ज्यादा देते हैं, उससे आयरन ओवरलोडिंग और बढ़ जाती है। यानी जो ट्रांसफ्यूजन देने के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो आप ऐड कर रही होती हैं, जबकि टारगेट आपका अचीव नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हमें फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए गैर जरूरी तौर पे कोशिश करना भी नहीं चाहिए, अनलेस कि हमने कोई प्रोसीजर प्लान किया हुआ है। अगर फर्ज किया हमें इसी लेवल पे 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के लेवल पे डिलीवरी भी करनी पड़ती है तो हम कर सकते हैं। We can keep ready fully screened and cross matched blood, and if need arise तो हम इसको लगा दें ब्लड। लेकिन अगर आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है लाइक सिजेरियन सेक्शन, तो फिर जाहिर है उसके लिए तो हमें हीमोग्लोबिन 8 से ज्यादा चाहिए, वो हम इसको उस वक्त हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। बट फॉर नॉर्मल डिलीवरी यू कैन जस्ट कीप रेडी ब्लड। इसको 8 पे भी ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश में गैर जरूरी तौर पे ब्लड लगाते जाएंगे और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। चलें जी, अब इसमें मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। Mode would be the depends on obstetrical indication. Normal vaginal delivery is possible in this patient, and timing we will wait for spontaneous onset of a labor. We can take the patient to the 40-41 weeks till she goes into spontaneous labor. Patient की hemoglobin 8 है, so she is having anemia, chronic anemia. She is already having a risk of having 41. preterm labor, but if even she did not go, we'll monitor the patient, and we can. It's not like that. It does not have that particular timing. We can even take a pregnancy as far as it goes up to 40-41 weeks, like that. क्या इसमें हमें 41 weeks तक जाना advisable होगा in a case of chronic anemia? Thalassemia, no, even up to estimated date of delivery, we cannot take post date. ये भी है। तो इसमें एडवाइजेबल नहीं है, क्रॉनिक पैथोलॉजी है, क्रॉनिक एनीमिया है, जिसको हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ठीक हो जाए। तो ऐसे पेशेंट में जो है वो मैक्सिमम भी आप 38-39 वीक्स पे प्लान कर लें, बिकॉज
whenever there is anemia, there is always a chronic state of hypoxia as well, which can affect the fetus after attaining a maturity. तो उसमें तो फिर लॉजिक नहीं बनता कि आप इसमें 40 या 41 वीक्स तक जाएं, तो इसलिए इसका टाइम आप 40-41 वीक्स तक ना ले जाएं, ठीक है। चलिए 38 वीक्स पे इसको इंड्यूस कर दें हम लोग, अगर शी डोंट जी? गो इनटू लेबर। क्या? वो 38 वीक्स पे वी वुड इंड्यूस सर इफ शी डोंट गो टू द लेबर। व्हाई नॉट? देखो क्रोनिक हाइपोक्सिक स्टेट है ना, तो उस सूरत में हम फिर इसको हमारे पास जस्टिफिकेशन है कि हम इसको जो 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ ये चल रही है, एंड आई फुली आई कैन एंटिसिपेट दैट दिस हीमोग्लोबिन विल नॉट गो बियॉन्ड 8, क्योंकि इसमें अभी तक की जो हिस्ट्री है वो इसी फेवर में जा रही है। और इसके अलावा इसको हम इतनी ट्रांसफ्यूजन देने के बावजूद भी 8 के बाद इसको ट्रांसफ्यूजन 3 मिली, उसके अलावा आयरन भी मिला, लेकिन ज़ाहिर आयरन देना तो इसमें इंडिकेटेड भी नहीं था, लेकिन एनीवे इट हैज फेल्ड टू बी ऑप्टिमाइज्ड हीमोग्लोबिन जो है, इसलिए हम इसको बार बार ब्लड लगाने का इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं है, जबकि खास तौर पे उसकी ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन भी आना शुरू हो गई। तो इस पेशेंट में फिर आप 38 मैक्सिमम बाय 39 तक भी शायद जाना थोड़ा सा जरा मुश्किल टू वो डिफेंड करना, लेकिन कम से कम 38-39 वीक्स को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 40-41 वीक्स पे नहीं। अब इसमें आता है मोड ऑफ डिलीवरी, दैट विल डेफिनेटली बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस। उसमें इसके डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन डिसाइडिंग द मोड ऑफ डिलीवरी। तो इसमें उसका फीटल स्टेटस एट दैट टाइम, बाकी उसका कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाला एलिमेंट, ओलिगोहाइड्रेमनियस है, उसकी प्रेजेंटेशन है, ये सब चीजें उस पर बेस करेगा। एंड इफ एवरीथिंग सूट्स फॉर द वेजाइनल डिलीवरी देन यू कैन गो फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, और वो फिर आपने जो है वो बिशप स्कोर असेस करके और उसके मुताबिक फिर आपने मेथड ऑफ इंडक्शन उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। मैम ये हम लोग इसको 38 पे डिलीवर करा है, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ कि मतलब रीजन बिहाइंड यही है कि हम बेबी को ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, baby has already maturity. Chronic hypoxic state is a stressful situation for the fetus. उसमें RDS के चांसेस भी उस हिसाब से कम हो जाते हैं, but you are exposing the fetus to the risk of anticipated जो एक यूजुअल रिस्क होते हैं कि उसमें क्रोनिक हाइपोक्सिक स्टेट, आपने इतने सारे रिस्क बताए इसमें क्रोनिक हाइपोक्सिया के, अनीमिया के, तो वो सारे रिस्क 38 वीक्स के बाद एक्टिवेट नहीं हो जाते, डेफिनेटली हो जाते हैं। तो ये जो है ये इसमें फिर आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी, इसमें फिर कोई लॉजिक नहीं है कि आप प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करें मजीद, जबकि उसमें ऐसे बेबी में जो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड बेबीज होते हैं, फीटसेस हैं, उसमें आरडीएस का रिस्क भी तो उस हिसाब से मिनिमाइज हो जाता है, लाइक इन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज में होता है। तो इस वजह से फिर आप इसको बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करोगे, ठीक है मैम? हाँ जी मैम इसका मूड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन में हो सकता है, क्योंकि जो है ना मैम, क्योंकि जो है ना जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर बोन डिफॉर्मिटी भी तो होती है, वो उनमें होती है जो कि जिनका चीजें चल रही हों, जिनमें एक्स्ट्रा मेडलरी हीमोपायोसिस वाली चीज पहले से एक्टिवेट हुई हो, तो उनमें ये होता है, उनमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी होती है, उनमें ये बोन मैरो एक्सपेंशन भी हो जाती है, उनमें बोन डिफॉर्मिटीज भी हो जाती हैं, या थैलेसीमिया मेजर के जो केसेस हैं उनमें ऐसा होता है, वरना इस केस में हम ये चीज नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि प्राइमी ग्रेविडा है, इसमें अगर बॉर्डर लाइन पेल्विस भी होगा फिर भी शी कैन गिवन अ ट्रायल ऑफ लेबर। सेक्शन तो विल बी बेस्ड ऑन ऑब्स्टेट्रिक रीजंस ओनली, और तो मैम पहले पेल्विमेट्री करें, मैम पहले पेल्विमेट्री करें, डिसाइड करें मूड ऑफ प्राइमरी में वैसे वुमेन पेल्विमेट्री देखो, अनलेस ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड पेल्विस हो, जो बहुत कम केसेस में अब होते हैं, कभी पोलियो का कोई केस हो या किसी की कोई फ्रैक्चर या पेल्विक फ्रैक्चर की हिस्ट्री हो, या उसकी फर्ज किया कोई गेट में इशू है, या उसकी दोनों मतलब उसमें पेल्विस जहाँ पे भी डिस्टॉर्शन का रिस्क है किसी भी वजह से, वहां पे तो आप करें। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसमें आपने ऐसी कोई चीज नोट नहीं की, शी इज जस्ट अ केस ऑफ थैलेसीमिया, और उसमें आप उसका पेल्विक करने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि पेल्विस बेसिकली पेल्विस को आप असेस तो करते हैं,
पावर पैसेज पैसेंजर वाली चीज में वो भी एक आ जाता है, एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, बट दैट शुड बी परफॉर्म नॉट बिफोर इंडक्शन unless it is grossly distorted. That should be assessed during the labor process. क्योंकि एक लेबर तो एक डायनामिक वो है, लेकिन हम उसको फिर उस तरह से असेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं इवन इन द पेल्विक बोन्स, रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक बोन्स, फिर उसके बाद उसकी जो मोल्डिंग है या हेड की जो मोल्डिंग है और सारा कुछ उसमें तो बाद में 1 सेंटीमीटर तक कभी फर्क पड़ जाता है बिटवीन द फीटल वर्टेक्स एंड द पेल्विक डायमीटर्स। तो इसलिए आप उसको उस हिसाब से हम असेस करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ लेबर प्रोसेस के दौरान ही छोड़ दो, अनलेस यू कैन एंटिसिपेट के इसमें इसकी कोई गेट डिफॉर्मिटी है, पेल्विक डिस्टॉर्शन है, हिस्ट्री ऑफ पोलियो है, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर्स है या कुछ लाइक एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, तो उस सूरत में आपने पहले करना है, अदरवाइज नहीं, जरूरत नहीं है, फिर तो आप इसको लेबर में ही सिर्फ देखोगे, ठीक है। तो इसमें आपने फिर बिशप स्कोर के हिसाब से ही चलना है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज एज पर रूटीन प्रोटोकॉल्स कि आपने डिलीवरी कर दी और उसके बाद आपने फिर इसको देखना है, वो तो फिर दैट इज बियॉन्ड आवर डिस्कशन। नियोनेट को फिर आपने नियोनेटोलॉजिस्ट के हवाले कर देना है और उसके बाद फिर आप इसके जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करोगे एंड द पेशेंट विल बेसिकली विल कम अंडर द केयर ऑफ फिजिशियन और हेमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हम इस केस को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जस्ट 1 और 2 क्वेश्चन, तो उसको हम देख लेते हैं। मैडम मेरा क्वेश्चन था HbF जो है वो क्या शो करता है? HbF अगर इंक्रीज, सॉरी HbF मैडम जो फीटल हीमोग्लोबिन है अगर वो रेस कर जाती है तो वो क्या शो करती है? Basically, this is a reaction to the increased hemolysis and as a result of hemopiosis, increased hemopiosis. तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हीमोग्लोबिन इस लिहाज से होती है कि जब हीमोग्लोबिन ए कम हो जाती है तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब भी कहीं पे एनीमिया होगा ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो हेमोलिसिस की वजह से हो चाहे आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज ओवरऑल डिक्रीज्ड, बच्चे को भी माँ को भी। तो हीमोग्लोबिन एफ की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो चेंज होता है एज कंपेयर टू दैट विद द एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये एक किस्म की प्रोटेक्टिव हीमोग्लोबिन होती है विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज हेमोपायोसिस ड्यू टू थैलेसीमिया। तो अदरवाइज इसको हम डायग्नोसिस में तो नहीं, डायग्नोसिस में सिर्फ हीमोग्लोबिन A2 लेवल का बढ़ना हुआ आएगा, क्योंकि बाज दफा अब जैसे लेस देन 1% केसेस में हीमोग्लोबिन F होती है, लेकिन बाज दफा ये इनसिग्निफिकेंटली भी एडल्ट लाइफ में भी ये परसिस्ट करती है। लेकिन इस केस में हम ये कहेंगे एज अ रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज्ड हीमोपायोसिस विच इज मोर प्रोटेक्टिव हीमोग्लोबिन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच जी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो यहाँ पे हम एंड अप करें। मैम मुझे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये वाला केस ही दूसरे केस के बारे में पूछना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग कार्डिक पेशेंट्स में क्या लेवल लगाएंगे? अगर सपोज कार्डिक पेशेंट है, स्टेबल है और उसकी हीमोग्लोबिन इज 7। देखो कार्डियक पेशेंट में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वेल्वुलर डिजीजेस के होते हैं। अब एक कार्डियक पेशेंट में हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हमने कार्डियक ओवरलोड से बचाना होता है मरीज को। कार्डियक ओवरलोड की जो वजह होती हैं ज्यादातर वो ये होती हैं, या तो किसी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाए। हार्ट रेट किस में बढ़ेगा? अगर फीवर हो जाए, अनीमिया हो जाए या थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए तो उसमें, या फिर कार्डियक ओवरलोड बढ़ेगा जब हम ज्यादा फ्लूइड दे रहे होते हैं। तो ये सारी वो रीजंस हैं जिनसे बचाना कार्डियक पेशेंट को जरूरी होता है। इसलिए कार्डियक पेशेंट में हीमोग्लोबिन के लेवल को मिनिमम भी जो है वो जो अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया है 10.5 या 10 मैक्सिमम भी इतना होना चाहिए। 7 पे तो कार्डियक प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेट हो जाते हैं। और अगर पेशेंट कभी भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं रहा तो हीमोग्लोबिन 6 पे कार्डियक प्रॉब्लम नए आना शुरू हो जाते हैं, अगेन ड्यू टू कॉम्पनसेटरी टैकीकार्डिया, कि उसमें इतना ज्यादा टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है कि वो कार्डियक ओवरलोड और ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट कर देती हैं कार्डियक उसको डिजीज को।
तो इस वजह से कार्डियक पेशेंट्स में 7 हीमोग्लोबिन इज नेवर अ टारगेट। आपने इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल पे लेके आना होता है बाय वॉट एवर अप्रोप्रिएट मेथड, चाहे आप उसको आयरन इन्फ्यूजन से करें, चाहे आप उसको ब्लड के साथ करें, वो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ दैट पेशेंट, बट अवॉइड टैकीकार्डिया, मैटरनल टैकीकार्डिया इन दीज पेशेंट्स। थायरोटॉक्सिकोसिस है तो उसकी मैनेजमेंट, फीवर है तो उसमें इन्फेक्शन का अप्रोप्रिएट कंट्रोल, और अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो उसमें फ्लूइड ओवरलोड से बचाने के लिए हम पैक्ड सेल दे रहे होते हैं। हम इवन लेबर के दौरान भी या सेक्शन के दौरान भी या सेक्शन के बाद भी इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड्स देते हैं हमेशा, अगेन टू अवॉइड कार्डियक ओवरलोड। ठीक है मैम, अगर ये 36 के ऊपर आ जाती है कार्डियक पेशेंट, चाहे कंपनसेटेड भी हो, लेकिन हीमोग्लोबिन की 37 है, तो उसको हमें 9 या 10 का टारगेट तो हमारा हीमोग्लोबिन होगा 37 के 7। हाँ, 36 above 36 पे she can go into the labor. Now she has hemoglobin 7 also. तो उसको कैसे, क्योंकि अभी इसमें तो हमें बैक टू बैक, देखो इसमें तो जाहिर है प्री टर्म लेबर के चांसेस तो जो हैं सो हैं, लेकिन 7 हीमोग्लोबिन पे उसकी वर्सनिंग ऑफ कार्डियक स्टेटस हो सकती है। बेसिक रूल वही रहेगा जो मैंने सारा बताया आपको, कि उसमें आपको ये बहुत जरूरी है। देखो लेबर में अगर पेशेंट जाता है, कोई ऑब्स्टेट्रिक रीजन नहीं है फॉर डूइंग सेक्शन, तो लेबर में क्या होता है, कैटाकोलेमिन रिलीज, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, टैकीकार्डिया भी और बढ़ जाता है, कार्डियक ओवरलोड डबल देन नॉर्मल हो जाता है। तो वो वाली सिचुएशन इंट्रापार्टम फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में तो कार्डियक ओवरलोड कहाँ से कहाँ चला जाता है। और अगर ऑलरेडी पेशेंट लेबर में एंटर हो विद हीमोग्लोबिन 7, तो पेशेंट की तो कार्डियक स्टेटस की वर्सनिंग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। इसलिए आप इसमें हमेशा फिर ब्लड लगा के इसका एनीमिया करेक्ट करो। यू वॉन्ट गिव दैट मच टाइम के इवन विद आईवी आयरन के उसमें उसको 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे ना आईवी आयरन के साथ भी, कि उसकी हीमोग्लोबिन रेज हो जाए। 36 पे है, 38 37 के बाद तो किसी टाइम पे ये लेबर में जा सकती है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस विद दिस ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट मॉर्बिडिटी, you would correct anemia by giving blood, packed cell volume. मैम यस मैम, उसको हम ब्लड देंगे, फिर इस पे एग्जामिनर कहेंगे यू आर पुटिंग पेशेंट ऑन द रिस्क ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, उसकी हार्ट पहले ही उसका तो जवाब आपके पास है। आपने टीसीवी हम लोग कहेंगे, टीसीवी मॉनिटर, आपने प्लाज्मा, देखो बात वही होती है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बाल दफा आपके गलत आंसर पे भी हो सकती है, बाल दफा आपको क्रॉस चेक करने के लिए भी हो सकती है कि आप कितना को कॉन्फिडेंट हैं उसके बारे में जो ट्रीटमेंट आपने बताई। और अगर आपके पास एक जस्टिफिकेशन सही वाली है, यानी आप अगर जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ मैं इसको ब्लड ही दूंगी क्योंकि ये मसले हैं इसमें, और विद अ स्मॉल रिस्क ऑफ कार्डियक ओवरलोड बाय गिविंग ब्लड, तो उसका हल मेरे पास ये है कि मैं इसको पैक्ड सेल लगाऊंगी। प्लाज्मा आपने ऑलरेडी निकाल दिया, तो कार्डियक ओवरलोड से तो प्लाज्मा निकालने से तो ओवरलोड वाली चीज कॉम्पनसेट हो गई। और अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत रिस्क है कार्डियक ओवरलोड का, तो आप उसमें डायूरेटिक क्यों नहीं दे सकते, दे सकते। मैम थैलेसीमिया में हम जो है थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देंगे? डिपेंड करता है उसमें, देखो थैलेसीमिया के स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। अब कोएगुलोपैथी का रिस्क बढ़ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है प्लेटलेट्स के लेवल पे, उसके ब्लड, अब रूटीन में ये नहीं दिया जाता, बट एज चूंकि हीमोपाइसिस वाला फैक्टर जब इफेक्ट होता है तो बोन मैरो की एक्टिविटी इन ऑल अदर सेल लाइंस भी बाद दफा इफेक्ट हो जाती है, और उसमें जो है वो ये इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो हैव अ रिव्यू ऑफ प्लेटलेट काउंट। और अगर फिर भी जरूरत हो, क्योंकि इसमें देखो थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस जस्ट बेस्ड ऑन थैलेसीमिया अलोन इंडिकेटेड उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर और फिर रिस्क फैक्टर इसमें को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक पेशेंट इज वेरी ओबीज, ये पेशेंट तो बेचारी वैसे ही थिन स्लिम है 22 kg के साथ, तो इसमें अगर और रिस्क फैक्टर हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट की अपनी हिस्ट्री है, ओबेसिटी की है, तो उस सूरत में फिर आप जरूर दे दो। लेकिन सिर्फ खाली थैलेसीमिया पे जो फर्स्ट टाइम इसको, वो क्रॉनिक थैलेसीमिया भी उसका उस तरह से पहले नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट थैलेसीमिया मेजर का था और हमेशा से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलती रही और अब आके वो प्रेगनेंसी में एंटर हो गई, जो कि थोड़ा सा रेयर अकरेंस होती है इवन थैलेसीमिया मेजर के साथ भी, तो वहां पे तो कंसिडर किया जा सकता है। सो डिसीजन विल बी बेस्ड फ्रॉम केस टू केस। उसमें
उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थैलेसीमिया होगा तो हम उसमें जरूर वो देंगे, एंटी कोएगुलेशन देंगे। वो फिर उसका केस टू केस डिसाइड होगा। मैम जैसे इस पेशेंट में प्लेटलेट्स जो थे वो नॉर्मल थे, तो जैसे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर थैलेसीमिया पेशेंट को है मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन तो हम प्रोफाइलेक्टिक लो डोज मॉलिक्यूलर वेट ट्रांसफ्यूजन वो वाले पेशेंट्स होते हैं, देखो इसको अभी तक सिर्फ 3 ब्लड मिले हैं। मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन वाले वो पेशेंट्स होते हैं हु एंटर इन प्रेगनेंसी विद दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री। पेशेंट की बड़ी शॉर्ट हिस्ट्री है, यानी 14 वीक से लेके ऑनवर्ड, यानी जस्ट 14 वीक्स हम कह सकते हैं कि तकरीबन 3-3.5 महीने में ये सारी इसकी सिचुएशन डेवलप हुई। तो इसमें इंडिकेटेड राइट नाउ इट इज नॉट इंडिकेटेड। अलबत्ता अगर ऐसा होता है कि ये हीमोग्लोबिन 8 से लेके 6-7 तक चली जाती है एनी टाइम आफ्टरवर्ड, और आपको हर 15 दिन बाद ब्लड लगाना पड़ता है, तो फिर उसमें जरूरत पड़ जाएगी। सो इट इज डिफिकल्ट टू से कि इस पेशेंट में लेटर ऑन जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन सो फार अभी तक हमने जो सिचुएशन या सिनेरियो जो डिस्कस किया उस पे तो इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलो ओके, Thank you, ma'am. Thank you so much. Allah.